So here taking up another video on atomic structure. This time we would be taking up numerical based on photoelectric effect. Now what is photoelectric effect? You must have studied in your theory part, but I will be taking up a brief idea about the same so that we can easily solve the numerical based on photoelectric effect. Now, as I told you in my previous video that the wave nature of light could not explain some phenomena like black body radiation, and the next one was photoelectric effect. Now, what is photoelectric effect? It is the ejection of electrons from the surface of a metal when light of a certain frequency strikes the metal surface. मतलब जब एक metal के surface पे light with the certain frequency, it hits that metal surface, some electrons get ejected from the metal. This is known as photoelectric effect. अब इसको आप ऐसे मत समझिए कि कोई भी मेटल पड़ी है और उस पर लाइट फॉल कर रही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. To observe photoelectric effect, we have to design, we have to use special apparatus, a tube, evacuated chamber use करना पड़ता है. So there's lot of process that goes into observation of the photoelectric effect. तो इसको कभी भी लिटरली मत लीजिए कि मेटल के ऊपर लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, राइट. सो दैट इज अ सेपरेट थिंग. वो आपने अपने थ्योरी पार्ट में जरूर पढ़ा होगा कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, राइट. नाउ see, so there are some important observations regarding the photoelectric effect, and these includes for every metal, like there are so many metals, so for each metal there is a minimum frequency of light that is needed to eject those electrons. And ye jo minimum frequency of light required hai, that frequency is known as threshold frequency. This frequency is known as threshold frequency. इतनी फ्रीक्वेंसी की ही लाइट होगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मेटल सरफेस. ना डिफरेंट, सो दैट मींस दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू नॉट से डिफाइन करते हैं, ये इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट फॉल करेगी सो इलेक्ट्रॉन्स वोंट गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं दे मस्ट बी मूविंग, so उनकी कोई kinetic energy होगी. So that kinetic energy is directly proportional to the frequency of the radiations. That light which is falling on the metal surface, उसकी frequency पे depend करेंगे, intensity पे depend नहीं करते हैं. Kinetic energy I'm talking about. And third important thing about the same is कितने electrons eject होंगे per second from the metal surface. Now this will depend upon the intensity of the light and would be independent of the frequency of the light radiations falling. So ये three important observations हैं regarding photoelectric effect. Now coming to next thing, कि photoelectric effect को कैसे explain किया गया on the basis of Planck's quantum theory, जो कि ये कहती है कि जो electrons हैं, जो radiations हैं, they are emitted or absorbed in the form of discrete packets, quanta जिसको बोलते हैं. In case of light we call them photons. So according to Einstein, who explained this photoelectric effect on the basis of this quantum theory, he said that when a photon of light strikes a metal surface, some of its energy it is used to take out that electron from the metal surface, and remaining energy, अगर ज्यादा होती है एनर्जी और जो बच जाती है एनर्जी आफ्टर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टेकन अप बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो दैट मींस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेरी बेसिक थिंग मैं बता रही हूँ इसके बारे में कि जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ जब वो मेटल सरफेस पे फॉल करता है
this is equal to certain minimum energy which is required to eject that electron, and that energy is known as binding energy. कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, प्लस अगर एक्स्ट्रा होगी तो दैट विल टर्न इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. Then electron will start moving with some energy. So this minimum, this binding energy जो ये होती है, इसको हम बोलते हैं this minimum energy required for the ejection, just ejection of the electron is known as, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, और कई बुक्स में W0 से इसको डिनोट भी किया होता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको, राइट. सो दैट मीन्स अगर स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विच वी यूज एज, ये जो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में करी थी, h nu will be equal to h nu naught plus kinetic energy of the electron. So this is equal to half mv square. अगर हमें कभी यूज करना पड़े, अगर नहीं करना पड़ेगा, सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो ठीक है, कहीं पे हमें मास वेलोसिटी निकालनी हो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो हम हाफ mv स्क्वायर यूज करते हैं h nu, और we can write kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. Now again important observation from this equation, अगर frequency जो है रेडिएशन की, this nu, if this is less than nu naught, कम है, तो there will be no ejection of electrons, ठीक है, because ये minimum frequency है जो चाहिए, threshold frequency. So electrons will not get ejected from the metal surface if the light that is striking on the surface has the frequency less than the threshold value. If it is greater than threshold frequency, then definitely electrons will get ejected, and extra जो energy बचेगी अब after that ejection, वो will be taken up as the kinetic energy. And अगर nu बराबर होगा nu naught के, then जितनी भी एनर्जी है that is just use up to eject, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में ही जो एनर्जी है वो यूज हो जाएगी, ठीक है. तो मतलब जस्ट बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में जितनी भी एनर्जी है वो यूज हो गई है इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट. तो हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो इन्हीं पे बेस्ड करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, एंड आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी. नाउ द क्वेश्चन सेज, फर्स्ट वन, this says light of wavelength 4000 angstrom falls on the surface of cesium. Calculate the energy of the photoelectron emitted. The critical wavelength or for photoelectric effect on cesium is 6600. This is angstrom. ठीक है, देखिए 4000 angstrom की वेवलेंथ की लाइट फॉल कर रही है सीजियम मेटल के सरफेस पे. हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, एंड उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है जो उसकी वेवलेंथ है 6600 एंगस्ट्रॉम. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हुआ सीजियम पे, तो जो क्रिटिकल वेवलेंथ, जो मिनिमम वेवलेंथ थी विद व्हिच दैट इलेक्ट्रॉन गॉट इजेक्टेड इज 6600 एंगस्ट्रॉम. तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी. अब आप खुद सोचिए एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी होगी दी काइनेटिक एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट. किस इलेक्ट्रॉन जो है किस एनर्जी से इजेक्ट हुआ, मतलब दैट मींस this thing, kinetic energy, which is equal to h nu minus h nu naught. So this is the energy, because threshold के बाद जितनी भी energy लगी, that is taken up as the energy of the ejected electron. ठीक है, so that means हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E is equal to h nu, एंड हमें निकालना है, मैं इसको E डैश बोल देती हूँ, इज इक्वल टू h nu naught.
एंड इनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव मी द एनर्जी दैट इज ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ से इसमें लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 4000 angstrom, right? So E is equal to H, that means E is equal to hc by lambda. H की वैल्यू ले लेते हैं हम 6.63 into 10 raised to power minus 34 एंड C हो गया हमारा 3 into 10 raised to power 8 अपॉन लैम्डा है 4000 angstrom, दैट मीन्स 10 raised to power minus 10 meters. सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं H ले ही रही हूँ क्योंकि मैं H को कॉमन लेके यूज कर लूंगी. सो H ऐसे ही रखते हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इंटू H की वैल्यू ये आ जाएगी मेरी ये. अब लेमडा कॉरस्पॉन्डिंग टू 6600 angstrom के लिए जो हमारा है एनर्जी वो आ जाएगा H C अपॉन लेमडा, इसके लिए H इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन 6600 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, राइट. सो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी E डैश की, इट विल कम आउट टू बी 4.545 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इंटू H ये आ जाएगी. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट. एक्चुअली यही था ना, ये H न्यू था दिस थिंग, तो था ये है तो यही ना, H न्यू नॉट है और ये क्या है हमारा H न्यू है. अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसके फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है. सो यहाँ से ये आ गया H न्यू कितना आया था मेरा, पहले H न्यू कितना आया, ये आया मेरा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 H माइनस 4.545 इंटू 10 रेज टू पावर 14 H. यहाँ से मैंने H कॉमन ले लिया तो 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 माइनस 4.45 दिस इंटू 10 रेज टू पावर 14. H की वैल्यू मैं आप सब्स्टिट्यूट करती हूँ 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 एंड इंटू 2.955 इंटू ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 14. So this will come out to be 1.959 into 10 raised to power minus 19 जूल. अभी मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे किया है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, what you can do is आपको एक जगह लैम्डा गिवन है 4000 angstrom, आप न्यू निकालिए 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10. फिर दूसरे में आपको लैम्डा दिया है जो थ्रेशोल्ड के लिए दिया है, दिस इज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू नोट हो जाएगा 1 अपॉन 6600 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10. एंड देन आप क्या करिए, सीधा E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट कर लीजिए. सीधा इसमें न्यू की वैल्यू और न्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, H की वैल्यू कीजिए और आंसर निकाल लीजिए. मे भी जैसे मैंने किया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा अभी यहाँ पे कि मैंने ये H ऐसे ही रख दिया है यहाँ पे, ठीक है. इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ओके what is happening to this, fine. तो ये what I am trying to say is, ये मैंने बेसिकली HC by lambda कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने H को कॉम ऐसे ही रख दिया. तो आपको जैसे मर्जी करना है वैसे कर लीजिए, बोथ वे आंसर विल बी सेम. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद द वेवलेंथ ऑफ 6000 angstrom एंड अदर विद 2000 angstrom. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. वेवलेंथ में हमें बोला है एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, तो एक की मान लेते हैं E, तो क्या हो जाएगा H न्यू. दूसरे की मान लेते हैं E डैश H न्यू डैश, ठीक है. सो इसका हो जाएगा HC बाय लैम्डा एंड इसका हो जाएगा
hc by lambda dash। ठीक है, यहाँ पे h और c तो दोनों में सेम है। लैम्डा इसके लिए है, एक के लिए है 6000 एंगस्ट्रॉम, दूसरे के लिए लैम्डा है, लैम्डा डैश बोल देते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू, वैसे तो इसको कन्वर्ट करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज ही बचनी है, लैम्डा वेवलेंथ ही बचनी है। ठीक है, चलिए मीटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, E अपॉन ई डैश। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एच सी बाय लेमडा अपॉन एच सी बाय लेमडा डैश, ये तो कैंसल आउट हो गए, तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा, दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 अपॉन 6000 इंटू 10 raised to power -10. So this is equal to 1/3. So this is the ratio between the two frequencies, उनकी जिनकी wavelength given है. So very simple. Next one, the threshold energy for photoelectric emission of electrons from a metal is this much. So आपको क्या given है, E is equal to h nu naught given है, ये आपको energy given है -15 joule. If the light of 4000 angstrom wavelength is used, will the electrons be ejected or not? देखो वेरी सिंपल, हमने इस वेवलेंथ के जो हैं लाइट जो है हमने इस वेवलेंथ की स्ट्राइक करवाई है। ये कह रही है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे या नहीं, रिजेक्ट होंगे या नहीं ना। अगर इस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम एनर्जी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू इसके बराबर या इससे ज्यादा आ गई तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट, जस्ट इजेक्ट भी हो सकते हैं, और फिर अगर ज्यादा आ गई तो वो मूव भी कर देंगे, मतलब है ना, विद हैविंग दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। बट अब दिस वैल्यू, मैं इसको ई डैश लिख लेती हूँ, if this value E dash comes less than E, then electrons won't get ejected. So वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे, तो वो कैसे निकलेगी, this is equal to 6.63 into 10 raised to power -34। मैंने अपने लास्ट वीडियो में 6.626 लिया था, H दोनों ही ले सकते हैं, 6.63 या 6.626, एंड सी होता है हमारा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। इसकी वैल्यू है वेवलेंथ की 4000 एंगस्ट्रॉम विच इज दिस मीटर। सो ये आ जाएगा कैलकुलेशन पे 4.9725 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जॉल्स। अब देखो कितना आया, ई डैश इज लेस देन ई, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन will be ejected. So, गलत लिख रही हूं, therefore electron won't be ejected, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, थ्रेशोल्ड होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम आ रही है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड with this much wavelength की लाइट, 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट के लिए इजेक्ट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. Now this is very simple. कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें ये बोला है कि 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, तो हमें वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक कर रही है, हमें निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वही एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। हम यही पढ़ते हैं ना इसके बारे में। तो सोडियम के लिए, मतलब सोडियम को आयनाइज करने के लिए, एंड आयनाइजेशन एनर्जी हम वैसे भी पर किलोजूल पर मोल या जूल पर मोल में लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है 242 नैनोमीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल लीजिए। दैट एनर्जी विल बी द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट विल बी दिस मच। तो हमें क्या करनी है, फॉर अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। सो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी
required will be equal to h nu, that is hc upon lambda, which is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 upon 242 into 10 raised to power minus 9. Now this value will be equal to 8.219 into 10 raised to power minus 19 joules. Therefore, for 1 mole, किलोजॉल पर मोल में निकालनी है, पहले जॉल पर मोल में निकालते हैं. फॉर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाली वैल्यू को. 8.219 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये आ जाएगा 494.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 जूल पर मोल. तो ये हो गया आपका 494.9 किलो जूल पर मोल. ये था. चलिए अगला करते हैं. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन in Armstrong units having energy of 1 electron volt. Now energy of 1 electron volt means 1.609 into 10 raised to power minus 19 joules. This is 1 electron volt is equal to this. क्या निकालना है हमें? वेवलेंथ निकालनी है इस फोटोन की. तो E is equal to h c upon lambda. This is equal to 1.609 into 10 raised to power minus 19. So h हो गया हमारा 6, यानी कि that means lambda is equal to hc upon 1.609 into 10 raised to power minus 19. h की वैल्यू 6.63 into 10 raised to power minus 34. c की वैल्यू 3 into 10 raised to power 8 upon एनर्जी हो गई ये. सो दिस विल कम आउट टू बी 12.40 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर्स. ये हो जाएगा. हमें आर्मस्ट्रांग में निकालनी है तो हमें 10 टू माइनस 10 मीटर करना पड़ेगा इसको. सो उसके लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड. सो ये हो जाएगा 12400 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, which is equal to 12400 ऑंगस्ट्रॉम. ये आ गई आपकी वेवलेंथ इन ऑंगस्ट्रॉम. चलिए अगला करते हैं. फ्रीक्वेंसी, ओके सॉरी. A quantum of light having energy E has a wavelength of 7200 angstrom. Calculate the frequency of light which corresponds to energy equal to 1/4 of E. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इन्होंने ये बोला है कि एक कोई है, लाइट की बात कर रहे हैं जिसकी एनर्जी E है. आई डोंट नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ E. उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 7200 ऑंगस्ट्रॉम. अगर वेवलेंथ गिवन है तो उस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc अपॉन लैम्डा. ये कह रहे हैं आप ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालो ऐसी लाइट की जिसकी जो एनर्जी है, सपोज E डैश है, उसकी एनर्जी इज 1/4 ऑफ E, 1/4 ऑफ E. तो क्या करेंगे हम यहां से E निकाल लेंगे, उसका 1/4 निकाल लेंगे, देन अगेन उसको h न्यू से इक्वेट करेंगे, वहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे C. नाउ E इज इक्वल टू, therefore E is equal to hc upon 7200 into 10 raised to power minus 10. तो यहाँ पे आ गया 6.63 into 10 raised to power minus 34 and velocity of light upon 7200 into 10 raised to power minus 10. ये जो वैल्यू आएगी दिस विल कम आउट टू बी 2.76 into 10 raised to power minus 19 joules. ये आ गई ये वाली. अब E डैश कितनी है, E डैश इज 1/4 ऑफ E, यानी कि 1/4 into 2.76 into 10 raised to power minus 19. So this will come out to be 6.626 into 10 raised to power minus, I think I did something wrong.
नो 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 नो, ठीक है। ओके, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इतनी, इतने जाउल्स, एंड आई नो दैट ई डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, मुझे ये फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। सो देयरफॉर एच न्यू डैश इज इक्वल टू 1/4 into 2.76 into 10 raised to power minus 19. Now nu dash is equal to 1/4 into 2.76 into 10 raised to power minus 19 अपॉन h। यहाँ पे करिए h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, which is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34, एंड ये आपका आ जाएगा अपॉन सॉल्विंग 0.1041 into 10 raised to power 15, और it can be written as 1.041 into 10 raised to power 14 per second। तो ये आ गई आपकी जो हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड चाहिए थी। ओके, दैट इज न्यू डैश, ये इसकी वैल्यू आ गई। पहले 1/4 निकाल लिया उस एनर्जी का, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1/4 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली। चलिए नेक्स्ट वन, अ फोटोकेमिकल रिएक्शन requires 9.6 into 10 raised to power minus 16 joules of energy per molecule. Calculate the number of photons per molecule of light with wavelength 250 nanometer that is sufficient to initiate the reaction. Very simple अगेन, देखिए ये है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, और हम स्ट्राइक करवा रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 250 नैनोमीटर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकालेंगे दैट विल बी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी जो है वो इतनी चाहिए। सो अगर एक फोटोन की इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी तो हम ये कितने फोटॉन्स की एनर्जी है 9.6 into 10 raised to power minus 16 जूल, ये हम निकाल सकते हैं। this question is very simple. See, so wavelength is 250 nanometer, which is equal to 250 into 10 raised to power minus 9 meter. Energy of one photon of light will be equal to h nu, that is equal to hc upon lambda। h कितना है 6.63 जो हम यूजुअली लेते हैं, एंड यहाँ पे आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू अपॉन लैम्डा की वैल्यू 250 into 10 raised to power minus 9। अब ये आएगा सॉल्व करके सब कुछ, ये आएगा 7.9512 into 10 raised to power minus 19 जूल। ये आ गई एनर्जी ऑफ जो वन फोटोन, जिसके जो हमें वेवलेंथ दी थी 250 नैनोमीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल ली। नाउ टोटल एनर्जी कितनी है 9.6 into 10 raised to power minus 16 जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल लगती है। तो दैट मींस नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे आ जाएंगे, सो इफ 7.9512 into 10 raised to power minus 19 joule is energy of one photon, therefore 9.6 into 10 raised to power minus 15 joule is the energy required for कितने photons की हो जाएगी 1/7.9512 into 10 raised to power minus 19 into 9.6 like this। so ये आ जाएगी आपकी 1207 photons। now I'll tell you something about this question। इस क्वेश्चन में इन सम बुक्स आई हैव सीन आंसर इज 120 फोटोन्स। 120 फोटोन्स तब आएगा जब आपको ये जो वैल्यू है ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 17 दी होगी। सो अगर बुक में वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 16 है, ये वाली वैल्यू, इसका जो एक्सपोनेंट है माइनस 16 है,
देन 1207 फोटॉन्स आएगा। अगर ये एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर -17 बन जाता है तो ये 120 फोटॉन्स बनेगा। एंड वन थिंग मोर, 1207 फोटॉन्स अप्रोक्सीमेटली है, समथिंग आता है 1207 पॉइंट समथिंग आता है। सो राउंड ऑफ टू 1207। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। चलिए अगला करते हैं। द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल X is this much, 7 into 10 raised to the power 14 per second. Calculate the kinetic energy of the electron emitted when radiation of frequency this much value strikes the metal. Very simple, ये तो हमें पता है, बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है, kinetic energy is equal to binding energy minus this energy minus आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सो यहां से हमारे पास न्यू की वैल्यू है ये 1 into 10 raised to power 15 per second, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7 into 10 raised to power 14 per second. Therefore kinetic energy is equal to H into nu minus nu naught. H है हमारा 6.63 into 10 raised to power -34, ये है 1 into 10 raised to power -15 this. So ये हो गया हमारा 6.63 into 10 raised to power -, इसको मैंने लिख दिया 10 into 10 raised to power -15 और नॉट 15 14, ताकि मैं 10 raised to power 14 कॉमन ले सकूं। तो 6.63 into 10 raised to power -34 into 10 raised to power 14 into 10 -7, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन सॉल्विंग 19.878 into 10 raised to power -20 joules, which will be equal to 1.9878 into 10 raised to power -19 joules. So this is the kinetic energy of the emitted electron. चलिए next one, the threshold frequency for the ejection of electron from a metal is 5 into 10 raised to power 14 per second. Will photon of radiation having energy equal to 3 into 10 raised to power -19 joule give photoelectric effect or not? Now ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर वो एनर्जी इसकी जितनी है या इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू इससे ज्यादा आ जाती है देन नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। तो हम ये निकाल के देख लेते हैं। सो H इज इक्वल टू, और देयर इज अनदर वे आल्सो, व्हाट वी कैन डू इज, यस दोनों में से कोई भी वे कर सकते हैं। आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी से कम आएगी तो भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो अभी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। 6.626 into 10 raised to power -34 into 5 into 10 raised to power 14 को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये आया 6.626 ले लिया मैंने इसमें, चलिए कोई बात नहीं, इंटू 5, ये हमारा आ गया 33.13 into 10 raised to power -20. So this is 3.313 into 10 raised to power -19 joule. So जो ये एनर्जी आई है ये ज्यादा आई है एज कंपेयर टू 3 into 10 raised to power -19 joule। ये जो एनर्जी आई है E डैश, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आई है दैट इज मोर, सो नो इट विल नॉट बी इमिटेड। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है हम इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी दी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, -19 जूल। दिस इज इक्वल टू H न्यू, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H, 3 into 10 raised to power -19 upon 6
6.626 into 10 raised to power minus 34, ये आ जाएगा 4.527 into 10 raised to power 14 per second. Now this is this frequency and threshold की वैल्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 into 10 raised to power 14 per second. Again, nu is less than nu naught, so no photoelectron won't be emitted with this much energy. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ दिस इज W नॉट वर्क फंक्शन, WO लिखा हुआ है, एंड ये भी है आपका V नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface. That means h nu is equal to h nu naught. क्योंकि एनर्जी जीरो है तो that means because kinetic energy is zero, therefore h nu is equal to h nu naught. When it is exposed to radiation of wavelength say 6800 angstrom, calculate threshold frequency and work function. So very simple, जो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड जो लैम्डा के उसी फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट विल बी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी. यही होता है. सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, सी nu naught is equal to C upon lambda 3 into 10 raised to power 8 upon 6800 into 10 raised to power minus 10. ये आ जाएगी 4.41 into 10 raised to power 14 per second. So this is your threshold frequency, right? And what about work function? ये हमारा हो गया nu naught. Work function, which is W naught, this will be equal to h nu naught. So 6.63 into 10 raised to power minus 34 into threshold frequency, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 229.2 into 10 raised to power minus 19 joules. So ये आ गई आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या आपकी वर्क फंक्शन. So this was all about the numerical on photoelectric effect. So I hope by this time you must be clear with the things regarding photoelectric effect. At least numerical part आपको अच्छे से clear हो गया होगा. So practice all the numerical from various books, and we will be continuing with atomic structure in the upcoming videos also.